Assalamu alaikum students, welcome to Stars Academy. In the previous topic we talked about the cell wall of bacteria, and today we are going to talk about the cell membrane of bacteria. सेल वॉल के ऊपर हम बात कर चुके हैं, अब हम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी बात कर लेते हैं. एंड यू नो सेल मेम्ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल एंड इट इज द कवरिंग ऑफ द सेल, जो कि आपके सेल को उसकी जगह पर रखती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, right? And you know that the cell wall is present in the bacteria as well as in the plants as well as in the fungi, but is not present in the animals, right? So in the animals the supporting thing is only the cell membrane. So you can understand that कि cell membrane जो है वो बहुत ही important है आपके सेल के लिए. और देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ जो बैक्टीरिया है वो किस तरह से है और किस तरह से काम करती है. सो फर्स्टली द सेल मेम्ब्रेन इज थिन, ठीक है. ये जो अगर हम कहें तो इट इज वेरी थिन, ये बहुत बारीक सी होती है एज कम्पेयर टू द सेल वॉल, राइट. बट इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल, राइट. ये फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें पाई जाती है. यू नो दैट सेल वॉल इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज हार्ड. बट besides this the cell membrane is flexible. जो cell membrane है वो आपके पास flexible है और ये आपके पास आपको बहुत सी flexibility provide करती है to your bacterial cell, right? So question arise होते हैं कि where the cell membrane is placed, where the cell membrane is present, what is the location of the cell membrane. So the location of the cell membrane is just below the cell wall, just beneath the cell wall. जैसे कि आपके सामने डायग्राम बनाई गई है. So if we consider the black as the cell wall, then the green is as the cell membrane, right? So the cell membrane is present just below the cell wall, right? So next point is cell membrane is very delicate. बहुत ज़्यादा शाइस्ता है, बहुत ज़्यादा नाजुक है. The reason is that if any changes occurs to your cell membrane को कोई भी changes आ जाती है, उसके ऊपर कोई अटैक हो जाता है, किसी भी किस्म के केमिकल्स का हो सकता है, फॉरेन पार्टिकल्स का हो सकता है, तो इससे आपकी जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है. इन केस ऑफ बैक्टीरिया in which only there is presence of only one cell. So if any agent from the outside attack your bacterial cell and it attacks the cell membrane, तो उससे आपके बैक्टीरिया की जो है वो डेथ हो सकती है, right? So it is very important that the cell membrane is very delicate और इसकी वजह से जो है आपके जो बैक्टीरिया है it might be dead, right? So now the next point, it is differ from the eukaryotic cells in Lankenstein role. यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, what is the difference between the cell membrane of the eukaryotes and prokaryotes. The cell membrane of eukaryote and prokaryote are very similar, but there is a difference. The difference that कि आपके बैक्टीरियल सेल वॉल में या प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के अंदर स्टीरोल नहीं पाया जाता. मीनिंग स्टीरोल मींस कि आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो यहाँ पर आपके पास इन द bacterial cell it is absent, right, and it is present in the animal cell and other higher animals. We say that eukaryotes. So now the question is, what is the function of cell membrane. Cell membrane के function की बात कर लेते हैं. So it is performing two very important function. The first one is the transport, right? It is the cell membrane जो है हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़कर आ चुके हैं. यहाँ पर हमने पढ़ा था कि cell membrane is semi permeable membrane. It allows particles to pass through them and it also do not allow some particles to pass through them. तो इसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. ये प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्ट के अंदर, बहुत से आयंस के ट्रांसपोर्ट के अंदर, आपके मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट के अंदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड फॉर द बैक्टीरियल सेल, उन तमाम की ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है आपके पास सेल मेम्ब्रेन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, राइट. सो नाउ द सेकंड फंक्शन इज दैट इट आल्सो कंटेन some enzymes, right? It also contains some enzymes that are responsible for the iron. What is iron? Iron means respiratory मेटाबॉलिज्म के अंदर जो आपकी रेस्पिरेशन के दौरान में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, उसके अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. यू नो दैट एंजाइम्स आर वेरी important for the reactions because enzymes speed up the reaction
और जो एंजाइम्स हैं ये आपकी मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जो कि आपकी रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म को जरा सा स्पीड अप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने फंक्शंस पढ़े सेल मेम्ब्रेन के। तो इट इज परफॉर्मिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इट इज परफॉर्मिंग द ट्रांसपोर्ट, इट इज आल्सो परफॉर्मिंग द फंक्शन by giving the enzyme, and it also has a function for the supporting factor as well, right? So now moving on to the next topic, that is the cytoplasmic matrix, right? In short form या in common language I will say that basically ये आपके पास आपके बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक रीजन है, साइटोप्लाज्मिक स्पेस है, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं, right? So we will simply define that the substances present between the प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान में जो तमाम सब्सटेंसेस पाए जाएंगे, जो रीजन पाया जाएगा, जो एरिया पाया जाएगा, दैट एरिया इज नोन एज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, राइट? अब पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं तो हम बेसिकली पहले देखें तो हमारे साइटोप्लाज्म नॉर्मल सेल्स एनिमल्स एंड प्लांट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। वहाँ पर ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, वहाँ पर आपके पास बहुत सी एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, वहाँ पर आपके पास बहुत सी प्रोटीन्स पाई जा रही हैं। तो these are basically the site for the metabolism for different reactions। बहुत से प्रोसेसेस होने हैं आपके सेल के अंदर जिनके अंदर साइटोप्लाज्म स्पेस प्रोवाइड करता है, आपको जगह प्रोवाइड करता है जहां पर वो रिएक्शंस होते हैं, जहां पर वो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो जस्ट लाइक दैट द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। सो its lap membrane organelle, and you know that the membrane bounded organelles are absent in the prokaryotes. It is also present, it is only present in the eukaryotes। आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड हो, यानी उसके अंदर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। तो ओनली मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज सच एज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन योर prokaryotes, right? So if you talk about the appearance of the cytoplasmic matrix, it is gel-like in appearance, ये gel-like होती है appearance के अंदर। And if you talk about its portion, so it is the major portion of the protoplast। So question arises that what is protoplast? Protoplast क्या होता है? So basically the protoplast means that the cell membrane and all the substances present in your cell membrane plus all the substances present in the cell, right, are known as collectively protoplast। सेल मेम्ब्रेन और इसके अलावा तमाम जितनी भी चीजें पाई जा रही है सेल के अंदर, उनको हम कलेक्टिवली तौर पर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का जो मेजर पोर्शन है दैट इज योर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज, आपको पूछा जाता है, राइट? सो इफ इट इज जेल लाइक इन अपीयरेंस, अगर ये जेल लाइक है तो इसमें जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत आसानी से मूव कर देंगे, बट लार्जर मॉलिक्यूल्स को थोड़ी परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि जेल लाइक अपीयरेंस है, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा उसको आप कह रहे हैं उसके गेज फ्रिक्शन लगेगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप रोड पर खड़े हुए हैं और आपके सामने से एक बच्चा साइकिल चलाकर आ रहा है, तो आप जो है उस बच्चे को किस तरह से रोक सकते हैं? आप आगे इसको थोड़ी सी बोर्ड लगाकर आप उस बच्चे की जो बाइसाइकिल है उसको रोक सकते हैं। बट अ ट्रक इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ट्रक आ रहा है और आप ट्रक को रोकना चाहे तो आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, राइट? तो बात करने का मकसद ये था कि आपका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर उल्ट काम हो रहा है, यहाँ पर जो फोर्स ज्यादा है वो रोकने वाले की ज्यादा है, क्योंकि वो जेल लाइक अपीयरेंस है। तो अगर छोटा मॉलिक्यूल होगा तो वो उसको क्या कहते हैं, बड़ा इजीली पास आउट हो जाएगा। बट इफ इट इज अ लार्जर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वो उसको बड़ी ज्यादा मुश्किल होगी गुजरने में, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन की जो फोर्स है बहुत ज्यादा लग रही होगी, राइट? सो if we talk about the next point, so there are various substances present in the cytoplasmic matrix। बहुत से substances पाए जाते हैं such as organelles, such as ions, such as enzymes, right? और न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जिसके साथ ही साथ आपके पास जो है डीएनए पाया जाता है in the form of chromatin bodies, right? तो यहाँ पर जो है बहुत से substances पाए जा रहे होते हैं। So now we are going to talk about the substances that are present in the cytoplasmic matrix।
So now we are going to talk about the substances, the things that are present in the cytoplasmic matrix. वो चीज़ों की बात करेंगे जो कि आपके cytoplasmic matrix में पाई जाती हैं. So the first thing that is present is the nucleoid, right? So if you talk about the nucleoid basically आपके बैक्टीरिया की वो जगह होती है जहाँ पर आपके बैक्टीरिया का जो आपके पास आपके लिए जेनेटिक मटेरियल है, उसका डीएनए या आरएनए है, वो पाया जा रहा होता है, राइट? सो आपको ये बात याद होगी कि हमने बात की थी कि जो आपके बैक्टीरिया हैं यानी कि प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर आपके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती. So as you know that in eukaryotes the nucleus is surrounded by the nuclear membrane, but we talked earlier that there is no membrane bounded organelle in the prokaryotes. So the in bacteria nucleus तो पाया ही नहीं जा रहा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया ही नहीं जा रहा और ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है. फिर क्या पाया? वहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के सेंटर में पाया जा रहा है, ठीक है, और सेंटर के अंदर जो उसका डीएनए है वो पाया जा रहा है और उसको उस रीजन को हमने न्यूक्लियोइड का नाम दे दिया है, राइट? सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, जैसे कि हमने बात की. डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट, जैसे कि हमने बात की थी ना कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो लेकिन इसके अंदर आपको क्रोमोसोम्स नजर नहीं आएंगे, राइट? द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द सेंटर, जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेल के सेंटर में पाया जाएगा विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट? The genetic material can be singular, circular or double-stranded DNA or it might be RNA, right? But mostly it is DNA in bacteria, right? So chromatin material की अगर हम बात करें, what is chromatin material? Basically it is a thread-like structure which have the genetic material means the DNA, right? So its genetic material is long and held tightly with each other, right? और ये जो है एक specific जो है एक खास region होगा that is present in the center of the bacterial cell where the genetic material is present and that region is known as nucleoid, right? So now we are going to talk about the second thing that is present in the bacterial cytoplasmic matrix, that is the plasmid, ठीक है? प्लाज्मिड होता है. प्लाज्मिड क्या होता है? बाल बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स के अलावा भी या जेनेटिक मटेरियल डीएनए के अलावा भी जो है एक खास किस्म का आप कह लेंगे सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं, राइट? सो इट इज एडिशनल टू द क्रोमोसोम्स, राइट? ये क्रोमोसोम्स के अलावा पाया जाता है कुछ बैक्टीरिया के अंदर. इट इज सर्कुलर डीएनए, ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है और ये मोस्टली जो है या डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मिड. ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पूछा जाता है पास्ट पेपर्स में भी. व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मिड, कि प्लाज्मिड का क्या किरदार है. सो बेसिकली प्लाज्मिड इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन और ग्रोथ, ठीक है, ना तो ग्रोथ ना या सेल डिवीजन से इसका ताल्लुक है. सो इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक है आपके इसके अंदर बहुत से ड्रग रेजिस्टेंट, हैवी मेटल्स, डिजीज रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स इसके ऊपर पाए जा रहे हैं. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसका जो मेन मकसद है, मेन पर्पस है, मेन मोटिव जो है वो इसका बैक्टीरिया की ग्रोथ या उसकी सेल डिवीजन करवाना नहीं है. बेसिकली बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन है from the different substances that are drug resistant, heavy metals, disease resistant substances जो उनके खिलाफ जो है बैक्टीरिया को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. सो द नेक्स्ट थिंग इज द राइबोसोम. इसके बारे में तो आप 12 दफा सुन चुके हैं. चैप्टर नंबर 4 में हमने राइबोसोम्स को डिटेल के अंदर पढ़ा, राइट? सो बेसिकली राइबोसोम्स आर नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ये आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्रीज हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं. सो क्वेश्चन राइज होता है कि ये क्यों पाए जा रहे हैं आपके प्रोकैरियोट्स में, इसके अलावा हमें कोई और ऑर्गेनेल नजर नहीं आ रही थी प्रोकैरियोट्स में. द रीजन इज दैट राइबोसोम इज नो यू कैन से दैट इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल. इसके अंदर मेम्ब्रेन पाई नहीं जा रही. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट राइबोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ. इट इज प्रेजेंट इन द यूकेरियोट एज वेल एज इट इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स, राइट? बट देयर इज अ डिफरेंस. द डिफरेंस इज दैट द prokaryotic ribosome is smaller in size, right? The size is 70s, but
इफ यू टॉक अबाउट द यूकेरियोटिक सेल द साइज इज 80s, ठीक है, उसकी जो आप कह रहे साइज है वो 80s है, और जो इसका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है इसका साइज जो है आपके पास 70s है, ठीक है। तो इट इज द फैक्ट ऑफ राइबोसोम, इट इज लूजली अटैच्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो आपके साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में पाया जाएगा, या तो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लूजली अटैच होगा। So the next substance we are going to talk about is the mesosomes. अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बैक्टीरिया का। बेसिकली होता ही है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, और इन्वेजिनेट होने के बाद एक ग्रैन्युलर, एक सर्कुलर सा एक आपके लिए सब्सटेंस बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है। उस खास किस्म के स्ट्रक्चर को हम मेसोसोम्स कहते हैं। The cell membrane imaginate from a structure that is known as the mesosomes, right? So what is the function of mesosome? The function of the mesosome, that is also very important short question. आपको short question पूछा जाता है, what is the function of mesosomes? ठीक है, the function of the mesosome is in the DNA replication, आपको DNA replication के अंदर हेल्प करता है, सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है, आपको बहुत से एंजाइम को एक्सपोर्ट करवाने के अंदर हेल्प करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, एंड it also contain the enzyme for the respiratory metabolism, right? So these are the functions that are of the mesosomes. Now we are going to talk about the granules and storage bodies. अब ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा कि प्रोकैरियोट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, और आपको पता है बात इन्वायरमेंट में सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं, मींस के जो आपको चीज़ें चाहिए वो आपको मिलेंगी, बट बात ऐसी सिचुएशंस आती है जब आपको सब्सटेंसेस या फिर आपको जो चीज़ें आपके लिए चाहिए होती हैं वो आपको नहीं मिल रही होती। सो उन हालात में आपने अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज रखने के लिए या किसी और ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज रखने के लिए अपने लिए चीज़ों को पहले से स्टोर किया होता है। जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूँ ना कि मतलब आपने अपने बुरे वक्त के लिए अपने लिए पैसे कुछ बचा कर रखे होते हैं, राइट? इन द सेम वे द बैक्टीरिया आल्सो हैव द स्टोरेज बॉडीज, जिसके अंदर वो अपने सब्सटेंसेस को, अपने लिए यूजफुल सब्सटेंसेस को स्टोर करता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया और बहुत सी यूजफुल सब्सटेंसेस हो गए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट आल्सो कंटेन द वेस्ट एज वेल, ये अपने वेस्ट को स्टोर करता है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। So these are the substances that are present in the cytoplasmic matrix. So I hope आपको लेक्चर समझ आया होगा. In the next lecture we will meet and we'll talk about the nutrition of bacteria.